قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کو سینٹرل جیل کراچی سے رہا کر دیا گیا ہے۔ آفاق احمد کی رہائی کی خبر ملتے ہی مہاجر قومی موومنٹ کے کارکنوں نے بھنگڑے ڈالے۔ ایم کیو ایم حقیقی کے رہنما کو 4 اپریل 2004 میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن 2 بار رہائی کے احکامات کے باوجود انہیں ایم پی او کے تحت نظر بند کر دیا گیا تھا۔ کل سندھ ہائی کورٹ نے نظر بندی کے احکامات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے آفاق احمد کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق حکومت سندھ نے رہائی کے بعد آفاق احمد کو رینجز کی سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آفاق احمد کو 2 بار ایم پی او کے تحت نظر بند بھی کیا گیا اور سندھ ہائی کورٹ نے ناظرین یہ تازہ مناظر اپنی ٹی وی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آفاق احمد کو رہا کیا گیا ہے اور وہ شیرپا قبرستان میں شہداء کی قبروں پر فاتح خوانی کے لیے جائیں گے۔ ان کے قافلے میں 1 بختر بند اور 2 بلٹ پروف گاڑیاں شامل ہیں۔ بالکل، اس وقت آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، جیل کے باہر کے مناظر ہیں، براہ راست ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ آفاق احمد کو آج رہا کر دیا گیا ہے اور بڑی تعداد میں ان کے یہاں پر جو ہے لوگ موجود ہیں ان کی جماعت کے۔ اس وقت ہمارے نمائندے اقتدار میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ اقتدار، اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے رہائی کے بعد؟ حال یہ ہے کہ آفاق احمد صاحب جو ہے وہ اپنی بختر بند گاڑی میں اس وقت بیٹھ چکے ہیں اور یہ جو ہے اور یہ جو کانوائے ہے یہ اب چلنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ سینٹرل جیل کی بالکنی سے اس کانوائے نے موو کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ وہ سے قیدی رہا ہوتے ہیں عام طور پر، اور ہم اس مرکزی دروازے میں موجود تھے جہاں پر جیل سپرنٹینڈنٹ کا آفس ہے۔ مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ اس کانوائے کو نکالا گیا ہے، بالکل تیار ہے۔ آپ میرے پیچھے گاڑیوں کا شور سن رہے ہوں گے۔ آفاق احمد صاحب جو ہے وہ بختر بند گاڑی میں موجود ہیں جو سندھ پولیس کی جانب سے۔ اقتدار پر آپ ہمارے ساتھ رہیے، اس وقت ہم بھی مناظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ گاڑیاں اس وقت جو ہے نکل رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بختر بند گاڑی جس میں آفاق احمد اس وقت موجود ہیں، مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین جن کو رہا کر دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ بڑی تعداد میں ان کے کانوائے میں ان کے جماعت کے جو کارکنان ہیں وہ موجود ہیں جو ان کے استقبال کے لیے پہلے سے جیل کے باہر موجود تھے۔ جی بالکل، اور مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد آفاق احمد کو بختر بند گاڑی میں بٹھایا گیا ہے اور یہاں پر یہ سینٹرل جیل کے مناظر اپنے ٹی وی سکرینز پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ قافلے نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے، بڑی تعداد میں گاڑیاں اور شور بھی بہت موجود ہے۔ یہاں پر کارکنان بڑی تعداد میں یہاں پر جمع اور اپنے لیڈر کا استقبال کرنے کے لیے وہ یہاں پر آئے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ان کو بختر بند گاڑی میں لے جایا جا رہا ہے، اور ہمارے نمائندے کے مطابق آفاق احمد شیرپا قبرستان جائیں گے، یہاں سے سب سے پہلے جہاں پر وہ کارکنوں کی جو قبریں ہیں ان پر فاتح خوانی کریں گے۔ آپ اس وقت یہ مناظر دیکھ رہے ہیں سینٹرل جیل کے باہر کے، جہاں پر مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کو رہا کرنے کے بعد لے جایا جا رہا ہے اور انہیں بختر بند گاڑی میں لے جایا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ بڑی تعداد میں پولیس بھی موجود ہے اور بڑی تعداد میں ان کی جماعت کے کارکنان موجود ہیں۔ بڑی تعداد میں آپ ان کا کانوائے دیکھ رہے ہیں جس میں بہت سی گاڑیاں موجود ہیں، جن میں بختر بند گاڑی جو ہے اس میں آفاق احمد موجود ہیں۔ ایکسکلوسیولی مناظر اپنے ٹی وی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں، براہ راست مناظر اور یہ قافلہ گاڑیوں کا جو کہ اس بختر بند گاڑی کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں جس میں آفاق احمد سوار ہیں، مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین، اور یہ قافلہ مغرب کی نماز اس وقت ناظرین ادا کی گئی کچھ دیر پہلے۔ اس کے بعد آفاق احمد بختر بند گاڑی میں سوار ہوا اور نعرے بازی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جو کارکنان بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں وہ نعرے بازی کر رہے ہیں اونچی آواز میں اور یہاں پر یہ شور سنا جا سکتا ہے۔ سینٹرل جیل کے باہر کے مناظر ہیں جہاں سے آفاق احمد کو لے کے جایا جا رہا ہے، گاڑیوں کا قافلہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بختر بند گاڑی جو اس میں ہے اس میں اس وقت آفاق احمد موجود ہیں جن کو یہاں سے لے کے جایا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ بڑی تعداد میں ان کے کارکنان موجود ہیں۔ یہ بختر بند گاڑی ہے جس میں آفاق احمد اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو سینٹرل جیل سے نکال کے رہا کرنے کے بعد یہاں سے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کی وجوہات کی وجہ سے بنا پر یہ بختر بند گاڑی میں ان کو لے جایا جا رہا ہے اور پولیس کی بڑی تعداد میں سیکیورٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے نمائندے اقتدار انور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ اقتدار، ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت مناظر، بڑی تعداد میں کارکنان بھی موجود ہیں، وہ بختر بند گاڑی بھی دیکھی جس میں آفاق احمد ہیں۔ یہ بتائے گا کہ ان کو کہاں لے کے جایا جا رہا ہے، یہاں سے سب سے پہلے وہ کہاں جائیں گے؟ مشل، ہم تھوڑی سی اس بات کی تصحیح کر دیں کہ جو جس طرح کے جیل حکام کی جانب سے پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ بختر بند گاڑی میں ان کو یہاں سے باہر لے جایا گیا، آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی ایسٹ کی گاڑی ہے، بلٹ پروف لینڈ کروزر 1101 ایس پی، اس کے اندر آفاق احمد بیٹھے ہوئے ہیں۔ آفاق احمد کو یہاں سے نکالا گیا، پولیس نے ایک بار پھر چکما ٹیکنیک آزمائی، پہلے ایک چھوٹا کانوائے نکالا جس کے اندر جو بختر بند گاڑی موجود تھی، تاثر دیا گیا کہ آفاق احمد صاحب اس میں
मौजूद है। उसके बाद हमें जब देखा, जिस तरह हमने बताया था कि 2 लैंड क्रूजर बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगाई गई हैं, उनमें से एक लैंड क्रूजर के अंदर खुद DIG बरोका साहब जो है अपने साथ बिठा के आफाक अहमद को लेके गए हैं। आफाक अहमद ने जब वो सेंट्रल जेल के गेट से बाहर आए तो मीडिया के नुमाइंदों की जानिब देखकर जो है वो V का निशान बनाया और इस दौरान ही उनके शीशे को फौरन ऊपर कर दिया गया। जिस हमने आपको बताया कि जब आफाक अहमद की मूवमेंट जेल से बाहर हुई है तो इब्तिदाई हमारे साथ लाइन करिए। नाज़रीन को हम ये बताना चाहेंगे कि DIG ईस्ट की बुलेट प्रूफ गाड़ी में आफाक अहमद को सवार किया गया और पुलिस ने इससे पहले एक बख्तरबंद गाड़ी बाहर निकाली, एक छोटा काफिला बाहर निकाला। ये तासुर दिया गया कि आफाक अहमद उस बख्तरबंद गाड़ी में सवार है, लेकिन असल में वो DIG ईस्ट की बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार और पूरी हिफाजत के साथ उन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उन्हें DIG ईस्ट की बुलेट प्रूफ गाड़ी में ले जाया जा रहा है। पहले बख्तरबंद गाड़ी कहा जाता रहा, इस वक्त आपको गाड़ी देख सकते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी DIG ईस्ट की, जिसमें आफाक अहमद को सवार किया गया है और सेंट्रल जेल कराची से उनको ले जाया जा रहा है। आपको बताते चले कि DIG ईस्ट की गाड़ी में लैंड क्रूजर में आफाक अहमद को ले जाया जा रहा है। उनको रिहा किया गया है सेंट्रल जेल कराची से और बड़ी तादाद में उनके कारकुनान पहले से वहां पर मौजूद थे उनके इस्तकबाल के लिए और इस पूरे कॉन्वॉय में उनके जो कारकुनान हैं वो भी उनके साथ साथ मौजूद हैं, लेकिन इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में उनको सेंट्रल जेल से लेके जाया जा रहा है। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद इस वक्त DIG ईस्ट की गाड़ी में मौजूद हैं। इक़्तिदार अनवर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते। इक़्तिदार अनवर, यहाँ से आफाक अहमद को किस जगह लेकर जाया जाएगा? देखिए, जो उनके पार्टी हुकाम है, जो उनके पार्टी के जिम्मेदारान हैं, उनके मुताबिक बताया गया है कि रेडी गोश्त के मकाम पर एक कब्रिस्तान है जिसमें उनके मुताबिक जो शहदा की कब्रें जो कि महाजिर कौमी मूवमेंट साहब रखते हैं मौजूद हैं, वहां पर वो जाएंगे, फातिहा खानी करेंगे। जिसके बाद जो है वो रेंजर्स की नफरी जो है वो इस नफरी से चार्ज डलेगी और फिर रेंजर्स की नफरी और कॉन्वाय की मौजूदगी में जो SHO लांडी हैं और जो SHO शेरपाव कॉलोनी है वो अपनी साथ जो है वो इनको इनकी रिहाइश का लांडी में लेके, यानी कि आरजी बैतुल हमजा ये लोग उसको कॉल करते हैं, वहां लेके जाएंगे। आफाक अहमद ने यहाँ जाने से पहले जो है वो नमाज मगरिब की अदायगी की और काफी देर तक वो जेल सुपरिटेंडेंट नुसरत मंगन के कमरे में बैठे रहे। जिसके बाद जो है वो यहाँ से जब वो निकले हैं तो उन्होंने, जिस तरह बताया कि पुलिस ने जो चकमा टेक्निक थी वो आज सुबह ही से लगा के रखी हुई थी और जो एक स्टाइल पुलिस ने अपनाया हुआ था कि पहले उसने बख्तरबंद गाड़ी निकाली, छोटा कॉन्वॉय निकाला, उसमें बताया गया कि आफाक अहमद DIG ईस्ट की गाड़ी में उनको बिठा के यहाँ से बाहर निकाला गया है। तो वो कारकुनान जो बाहर रैली की सूरत में जमा हो गए थे उनको भी जो यहाँ से चकमा दिया गया और कई दफा जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस ली गई। काफी बड़ी तादाद में तकरीबन 8 से 10 थाने आते हैं ईस्ट जोन के अंदर, सारे थानों की नफरी को यहाँ पर तलब किया गया था, सब नफरियों को यहाँ बुलाया गया था। जिसके बाद तमाम थानों के SHOs खुद यहाँ मौजूद थे और वो सारे के सारे इनको साथ लेके अब यहाँ से निकले हैं। बताया जाता है कि यहाँ से वो सीधा रेडी होते कब्रिस्तान जाएंगे, फातिहा खानी के बाद जो है वो दोबारा अपने घर आरजी बैतुल हमजा जाएंगे। बहुत अरसे बाद अप्रैल 2003 से आफाक अहमद असीर थे, तमाम मुकदमात में उनकी रिहाई हुई। उसके बाद जो है मुख्तलिफ मरहलों पर जो है वो उनको MPO के तहत नजरबंद किया गया और कल जब उनकी नजरबंदी को कलम करार दिया गया तो आज भी बहुत हद तक इस बात का इंतजार किया जा रहा था। बार बार लोग पूछ रहे थे क्या उनकी रिहाई होगी या उनको MPO के तहत बंद कर दिया जाएगा। तो फाइनली महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद को कराची सेंट्रल जेल से कर दिया गया है। सख्त सिक्योरिटी की बात में अब उनका कॉन्वॉय जो है वो अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हुआ। इसका मतलब ये है कि जो उनके कारकुनान हैं उनको एहतमाल था कि शायद पिछली 2 मरतबा की तरह इस बार भी दोबारा से नजरबंद न कर दिया जाए, लेकिन उनको बिलाखिर रिहा कर दिया गया है। ये बताएगा कि बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, उनका जोशो खरोश कैसा था? देखिए, बाहर जो जोशो खरोश था, जिसमें हमने बताया कि 8 साल से महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद अप्रैल 2003 में इनको जो है वो इनकी रिहाइश गाह आरजी बैतुल हमजा से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से ही इनको मुख्तलिफ मुकदमात का सामना है। लोग ये भी कहते हैं कि आज के बाद कराची समेत सिंध भर, बल्कि अगर हम कहें कि पाकिस्तान भर के किसी भी जेल में अब कोई सियासी कैदी नहीं रहा तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। ये आखिरी सियासी कैदी थे जो बहुत अरसे से जेल में से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इनकी जो है वो रिहाई कैंसिल होती रही और बिला आखिर जो है एक फाइनल मूवमेंट जब आया था यकम मुहर्रम से पहले तो इनको रिहा किया जाया था। फिर हुकूमत ने अमन अमान के तहत इनको एक दफा फिर MPO किया था, लेकिन कल जब इनके भाई की दरख्वास्त की समाअत हुई थी सिंध हाई कोर्ट में तो जस्टिस साहब ने यह
कहकर के अब इनको कलदम क्यों किया जाता है, अब न किया जाए। पाबंद किया था महकमा दाखिला सिंध को, जिसके बाद आज जो है वो इनकी रिहाई अमल में आई है। 2 बजे से ही जेल हुक्काम ने अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। जिस तरह हमने आपको पहले भी आगाह करते रहे कि जेल हुक्काम का ये कहना था कि आफाक अहमद की जानिब से और उनकी पार्टी की जानिब से 2 दरख्वास्त जेल हुक्काम को दी गई हैं कि जब तक सिक्योरिटी ना आए इनको यहाँ से रिहा ना किया जाए। इसी तरह आज जो है वो तमाम चीजों को फॉलो किया गया। रेंजर्स से सिक्योरिटी मांगी गई। हमारी इत्तला के मुताबिक 35 जवान रेंजर्स के, 25 कमांडोज पुलिस के अलावा FC के भी एहलकार इनके साथ मौजूद हैं। इनको बुलाया गया। तमाम रास्ते में संगठन की जानिब आते हैं उनको बंद किया गया। शदीद ट्रैफिक के अंदर जब इनकी रैली आई, यहाँ पे कारकुनान ने नारेबाजी की, उसका कारकुनान को मुंतशिर किया गया। और बिला आखिर मगरिब की नमाज की अदायगी के बाद तमाम तर सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद एक बहुत बड़े कॉन्वॉय की सूरत में सामने आपको बताया 2 हिस्सों में तकसीम था ये कॉन्वॉय। 2 हिस्सों में ये कॉन्वॉय निकला है और हमारी इत्तलात के मुताबिक 20 मिनट में इसमें कोई 18 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करना है। तो बहुत स्पीड के साथ जहाँ से गुजरेगा कॉन्वॉय, जिसमें एक VIP मूवमेंट होती है उतना इनको ले जाया जा रहा है, क्योंकि हुकाम का ये कहना है कि वो किसी भी किस्म का सिक्योरिटी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। इसी तरह की जो हिफाजती इंतजाम हैं वो रेडी गोड, कब्रिस्तान और इनकी रिहाइशगाह के इर्द गिर्द भी किए गए हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि पुलिस के बाद अब इनकी जो सिक्योरिटी है वो रेंजर्स की सपोर्ट कर दी जाएगी। तो बिला आखिर अब सिंध की बल्कि पाकिस्तान भर की जेलों में अब इस वक्त कोई सियासी कैदी नहीं है। ये आखिरी सियासी कैदी थे जिनको अब रिहा कर दिया गया है। जी अनवर, जो सिक्योरिटी साथ है आफाक अहमद की, उसका जिक्र आपने किया है। ये बताइए जो 18 किलोमीटर का ये फासला है जो तय करना है इस काफिले ने, उसके रास्ते में कैसी सिक्योरिटी फराहम की गई है? अजी देखिए, हमको इतना बता कि एक जो तरीकाकार रखा गया है जब ये सेंट्रल जेल कराची, अगर हमारे कराची के नाज़रीन या मुल्क भर के नाज़रीन की हम मालूमात के लिए बताएं कि कराची में न्यू एमेजिना रोड के मकाम पर कराची सेंट्रल जेल वाक़ है। काफी तारीखी जेल है। इस जेल के 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा जो मरकजी दरवाजा है वो जमशेद टाउन की जानिब खुलता है, जबकि दूसरा दरवाजा पुरानी सब्जी मंडी में गुलशन इकबाल टाउन की जानिब खुलता है। तो गुलशन इकबाल टाउन की जानिब जो दरवाजा खुलता है वहां से इनको बाहर निकाला गया है। उसके बाद स्टेडियम रोड है। स्टेडियम रोड के बाद जो है वो कराची का पहला सिग्नल फ्री कॉरिडोर आएगा। सिग्नल फ्री कॉरिडोर में आप समझते हैं कि जिस तरह के फास्ट ट्रैक हैं, तनसीबात है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी की, वहां इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। लेकिन बाकी हमें ये बताया गया है कि शराय फैसल पर जब इनका जाएगा वहां पर ट्रैफिक पुलिस को इस बात के लिए पाबंद किया गया है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो रोड को थोड़ी देर के लिए सराय फैसल को बंद करवाएगी और जहां भी जो मूवमेंट करना चाहेंगे वो आगे जो कार्रवाई जो गाड़ी चल रही है उसके मुताबिक, उसके वायरलेस सेट के मुताबिक ईस्ट जोन की तमाम पुलिस को पाबंद किया गया है कि वो उससे वायरलेस में कनेक्ट रहेंगे। इसके अलावा भी रास्ते में जितने थाने आते हैं तमाम थानों के SHOs को पहले ही से सेंट्रल जेल कराची में बुलाया गया था। नफीसत आए थे, उनको बताया गया था कि वो अपने अपने इलाके में गुजरने वाली सड़कों को आफाक अहमद की मूवमेंट के टाइम बंद करवाएंगे। तो जिस ठीक है इक़्तिदार अनवर, आप हमें अपडेट कर रहे थे आफाक अहमद को रिहा कर दिया गया, उनका कॉन्वॉय यहाँ से गुजर चुका है। बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में शामिल करेंगे।